So in your nomenclature we will discuss about the common name as well as the IUPAC name. So let's start with the first member of ether, CH3OCH3, and I hope you are clear that ether has the general formula ROR. This R and this R may be same or may be different. If both R are same, you will say that is a symmetrical ether, and if both are different, then you will say that is a unsymmetrical ether. So this is the first member of ether that I have written here. What will be its common name? Common name will be methyl. Methyl is there, so it's a dimethyl, and as it is ether, so its name will be dimethyl ether. So dimethyl ether is its common name. What will be its IUPAC name? IUPAC name कौन होगा? So here both are in the same chain length, means यार को गले भी गोटे कार्बन अच्छी, यार को गले भी गोटे कार्बन अच्छी. So you will go to any one side, and suppose it will be unsymmetrical ether, then you will go to the longest side. Parent carbon chain अगर तुम्हें longest को नेबो. So now what about this part? Now this part will act as a substituent here because it is not in the parent chain. So it will be in the prefix. And what will be its name? Methyl plus oxygen, means methoxy. Methyl plus oxygen, methoxy. It is attached to which position? One position. So its IUPAC name will be 1-methoxy, 1-methoxy, and as only one carbon is there, so meth, and all single one are there, so its name is 1-methoxy methane. Very easy, 1-methoxy methane. Now let's go to another one, CH3OCH2CH3. This is an unsymmetrical ether. What will be its common name? Yara common name कौन होगा? Common name होगा, that is it is a ethyl group and this is a methyl group, and alphabetically ethyl will come first, so its name will be ethyl methyl ether. So it is its common name, ethyl methyl ether. What will be its IUPAC name? How to know? So what you will do, you will first do the numbering. So to this side or to this side, को साइड नंबरिंग हम जोटा लेंथी थी लॉन्गेस्ट थी से साइड नंबरिंग हम. सो ये साइड नंबरिंग हम 1 and 2, and to one position this is the substituent. What is the name of this substituent? Methyl plus oxygen, methoxy, and it is to the one position, so its name will be 1-methoxy, 1-methoxy, and as two carbon are there, so mean eth, and all single one are there, so 1-methoxy ethane. This is the common name of this compound. So this is how we can discuss common name of various ether. Let's go to another ether, CH3, CH, O, C2H5, CH2, CH3. This is also ether. What will be its common name? What will be its common name? Simple, this is the ethyl group and this is your isobutyl group, because a 4 carbon is there and which is branched is there, so you can say it is a isobutyl group. So its name will be E will come first alphabetically, so you will have ethyl, isobutyl ether, ethyl, isobutyl ether. And what will be its IUPAC name? How to do it? So this is the longest chain, and if we will come from this side, so substitution will be at the 3 carbon, 1, 2, 3, but if it will come from this side, then substitution at the second carbon. So this is the right numbering, 1, 2, 3, 4. And ethyl plus oxygen, what will be its name? Ethyl plus oxygen means it is ethoxy, so its name will be 2-ethoxy. 2 number carbon ethoxy lagichi, 2-ethoxy, and 4 carbon are there, so it is but, all single one are there, means 2-ethoxy butane. So this is the name of this compound, 2-ethoxy butane. सेमती आमे आउ गोटे कंपाउंड जाई परिबा. लास्ट कंपाउंड मु प्रिपेयर करू, लास्ट कंपाउंड आमे डिस्कस करिबा. बाकी जे कोनसे कंपाउंड देले तमे करि परिबो. CH3, CH3, OCH3. What about this compound? ए कंपाउंड रो ना कोन हबो? So this is common name. First let's discuss. This is T-butyl, tertiary butyl, and this is methyl. So alphabetically your tertiary butyl and methyl is there, so which one will come first? If you will go to the alphabetical order, then which one will come first? That actually B is there, butyl. Tertiary is indicating that it is branched, so the name will start from the butyl first, so its name will be tot, and this tot is not considered for the alphabetical order because it is only indicating that it is a 3D or it is branched. तो सेति पे नाटा जो हबो
से ब्यूटाइल आग रहिबो टर्शियरी ब्यूटाइल एंड मिथाइल इज देयर सो टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल इथर ध्यान दियो तुम कहबो MNOPQRST एम तो आगो आसुचे अल्फाबेटिकली नो वी आर नॉट कंसीडरिंग T फॉर चूजिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिस इज द नेम दैट ब्यूटाइल इज योर नेम दैट वी विल चूज फर्स्ट क्लियर एतकी बुझी पारला समस्ते ठीक से एक्चुअली यही हिसाब रे देखिले दिस इज नॉट इथाइल इथाइल प्रथमे आसीबो नाही एई जगह रे आइसोब्यूटाइल फर्स्ट आसीबो एंड दैट इज करेक्ट वन कारण ब्यूटाइल रो हम स्टार्ट करूछु so isobutyl will come first so this is isobutyl ethyl ether मन रखि तो ये जो आइसो लागिला किंबा टॉट लागिला this is not considered for your this is not considered for good second one minute no यही जगह ठीक अच्छी एक्चुअली हियर इट इज करेक्ट कौन सी चेंज करवार दरकार नहीं यही जगह केवल टॉट और कनसीडर हो नहीं टर्शियरी कनसीडर हो नहीं ना दिस इज करेक्ट इथाइल आइसोब्यूटाइल यहाँ कॉमन नेम आकार जाए यही जगह आइसोर कनसीडर हम बट ये जगह टर्शियरी ब्यूटाइल जो रोचे दिस विल नॉट कनसीडर बिकज ये जगह टर्शियरी जो इंडिकेट करुच्ची से 3 डिग्री को इंडिकेट करुच्ची तो से ना को आम कनसीडर करूने सो टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल इथर हम तार ना टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल इथर हम आ यार ना तुम हम इथाइल आइसोब्यूटाइल इथर हम इथाइल आइसोब्यूटाइल इथर एंड दिस इज योर 2 इथोक्सी ब्यूटेन एंड व्हाट विल बी इट्स आईपेक नेम यार आईपेक नेम काना हबा आईपेक नेम 1 नंबरिंग को जगह हम यू कैन कनसीडर फ्रॉम एनी वन साइड 1 2 आइदर ऊपर के जापर कि तलू जापर 1 2 3 तो ना काना हवा 2 नंबर पोजिशन में मिथाइल लगिला आ 2 नंबर पोजिशन में मिथोक्सी लगी तो दुईटा सब्स्टिट्यूएंट लगी गोटे है मिथाइल आ गोटे है मिथोक्सी तो मिथाइल गोटे सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल गोटे सब्स्टिट्यूएंट है आ गोटे सब्स्टिट्यूएंट है मिथोक्सी अल्फाबेटिकली प्रथमे क्या आसीबो अल्फाबेटिकली फर्स्ट मिथोक्सी विल कम METHYL अच्छी ये मिथोक्सी अच्छी सो अल्फाबेटिकली फर्स्ट मिथोक्सी विल कम सो इट्स नेम विल बी 2 methoxy its name will be 2 methoxy 2 methyl propane this is the name 2 methoxy 2 methyl propane 2 methoxy 2 methyl propane इतकी बुझी पारल 2 methoxy 2 methyl propane यही जगह नोमेनक्लेचर जो मुझे कही ध्यान देख जो आम आइसो को कंपेयर करूँ अल्फाबेटिकली ई आग आसूची आई पर आसो तो से इथाइल आइसोब्यूटाइल इथर है कारण ये कन्फ्यूजन थिला आम जो आइसो करूँ से टाइम आई को आम कनसीडर कला बिकज दिस इज इनक्लूडेड इन ए सिंगल नेम यही जगह ये सब्स्टिट्यूएंट सिंगल नेम आकार यूज होती किंतु यही जगह टर्शियरी ब्यूटाइल को आम सिंगल नेम आकार यूज करूना बिकज दिस टर्शियरी इज इंडिकेटिंग दैट इट इज ओनली 3 डिग्री 3 डिग्री बोली से इंडिकेट करुचे तो से ये जगह टी को आम अल्फाबेटिकल ऑर्डर रे चूज करूना अल्फाबेटिकली प्रथमे बी आसीबो तो से टर्शियरी ब्यूटाइल प्रथमे रहिला तापर जे कि मिथाइल रहिला देख यहाँ ब्यूटाइल होता कि 3 डिग्री अच्छी बोलिक आम टर्शियरी ब्यूटाइल आम लिखुचु से जगह तो से यही जगह टी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर चूज करा कनसीडर कराई ना किंतु यही जगह आइसोब्यूटाइल तार ना को ही इंडिकेट करुच्ची तो से अल्फाबेटिकल ऑर्डर चूज कला बेले आई को कनसीडर करागला यही जगह किसी पिला कन्फ्यूजन रहे तो से मुझे 2 थर रिपीट कर कहीदेची आई डोंट थिंक इतना कहारी असुविधा थी एतकी तुम समस्ते नोमेनक्लेचर रे जानले सफिशिएंट है ओके आउ एग्जाम रे मोस्टली आईपेक नोमेनक्लेचर के नेकी ही प्राय क्वेश्चन पचरासी है इथर रे सो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रिपेरेसन आमे एबे प्रिपेरेसन विषय रे डिस्कशन करबा सो लेट्स डिस्कस अबाउट द मन रखी तो ये जगह तुम्हें जब स्टेट ब्यूरो बुक देखो भी आईपेक नोमेनक्लेचर एमती आकार देचे तो मुझे बुक रू ही पढ़ाऊे तो इतने मत लगुचे क्या विशेष असुविधा नहीं हवा कथा सो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रिपेरेसन ऑफ इथर आम इथर प्रिपेरेसन पढ़ा एंड प्रिपेरेसन फ्रॉम अल्कोहल फर्स्ट वी विल डिस्कस द प्रिपेरेसन ऑफ इथर फ्रॉम अल्कोहल फर्स्ट आम अल्कोहल रु प्रथमे इथर प्रिपेरेसन डिस्कसन करिबा क्लियर how it will form
आउ से केंती रिएक्शन करसी टिके खाली अल्कोहल ही तुम सिलेबस रे गुटे अछि अल्कोहल सिलेबस रे अछि आ गुटे विलियमसन सिंथेसिस अछि सो फर्स्ट आमे अल्कोहल विषय रे डिस्कशन करबा वेरी सिंपल आमे कोनोसी भी अल्कोहल के जदि आमे कंसंट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंस रे आमे रखुछु आउ टेम्परेचर जदि 413 केल्विन दोछु सी दिस इज द कंडीशन if you are using alcohol under the influence of or under the condition of concentrated H2SO4 at 413 Kelvin माने बहुत कम टेम्परेचर है कारण 273 माइनस कर देबो ताले टेम्परेचर बहुत कमी जाउची तो दिस इज ए लो टेम्परेचर कंडीशन आउ गुटे कंडीशन अछि सी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रे हाई टेम्परेचर कंडीशन गुटे यूज हुए तो लो टेम्परेचर कंडीशन गोटे अच्छी और हाई टेम्परेचर कंडीशन गोटे अच्छी लो टेम्परेचर माने 413 केल्विन और हाई टेम्परेचर माने 443 केल्विन तो यही कंडीशन रे लो टेम्परेचर कंडीशन रे इथर तैयारी हेबो एंड एटा भी जो इथर तैयारी हेबो इन टर्म्स ऑफ डिहाइड्रेशन प्रोसेस माने वाटर लॉस है की सो अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन at low temperature in presence of concentrated sulfuric acid to give ether सेटु कोन बाहरिबो से जगह रे इथर बाहरिबो किंतु जदि आमे हाई टेम्परेचर देबा एंड इफ द अल्कोहल यू आर यूजिंग जो अल्कोहल तमे यूज करूछो सेही जगह रे जदि बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल अछि बीटा हाइड्रोजन जदि अवेलेबल अछि ता माने काना सपोज CH3 CH2OH this is alcohol, this is alpha carbon, this is beta carbon. So beta carbon has hydrogen here. So if the alcohol possesses beta hydrogen, then in that case under the same concentrated sulfuric acid condition and if you will apply 443 Kelvin temperature माना इतके हम लो टेम्परेचर नहीं जाउछे आ इतके हम हाई टेम्परेचर नहीं जाउछे तो हाई टेम्परेचर कंडीशन रे माने जेने टेम्परेचर अधिका अच्छे सही कंडीशन रे सही अल्कोहल रु अल्किन तैयारी हुए अल्किन माने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विथ द सेम डिहाइड्रेशन बा वाटर लॉस है कि ध्यान रख जदि अल्कोहल रे बीटा हाइड्रोजन देइछे बा बीटा हाइड्रोजन जदि अच्छे सही केस रे जदि हाई टेम्परेचर दिया जिबा अल्किन बाहरबा आउ जदि लो टेम्परेचर दिया जिबा इथर बाहरबा इटा गोटे बहुत फंडामेंटल कांसेप्ट है मन रखितो आउ जदि अल्कोहल रे जदि बीटा हाइड्रोजन नाही जेंति कि जदि मिथाइल इथर दिया गला ताले एई केस रे तमे जेन टेम्परेचर नेले भी सेही इथर ही बाहरबा सेने तो अल्किन बाहरबार प्रश्न ही नाही उठबार के बुझी पारुछ समस्ते तो बेसिकली अल्कोहल रु जेते बेले आमे इथर तयारी करूछु इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर को केस रे जो केस रे बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल अच्छी बीटा हाइड्रोजन जदि अवेलेबल अच्छी आ जदि हाई टेम्परेचर दिया गला ताले अल्किन तयारी हेबो आउ जदि बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल नाही ताले सही केस रे जदि टेम्परेचर तुमे जहाँ भी दियो इथर ही बाहरबा तुमे किंतु जेते बेले इथर तयारी करूछ अल्कोहल रु तुमे सब बेले 413 केल्विन टेम्परेचर के मन रखिथिबो मु एही पर्सन एथिले कहली तंगु काम रे आसी माने केते बेले मिक्सचर प्रोडक्ट देथिबा बेले से टाइम रे जानबार लागि आमे डिस्कशन करबा इतार ऊपर मन रखि पारलो समस्त पहले एतकी मन रखलो तो आमे इथर तयारी लागि थ्योरी काना लिखमा ताहले अल्कोहल डिहाइड्रेशन माने वाटर लॉस हवा और रिएक्शन केंदी लिखा जीवा मु कहबी अंडरगो डिहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ concentrated sulfuric acid at low temperature ये मेंशन कर दूँ मु at low temperature that is 413 Kelvin to give ether सेनु काना बाहरबा इथर बाहरबा एतकी बुझी पारला समस्ते तो एबे आमे रिएक्शन लिखू केंदी बाहरबा इथर जी लेट्स फाइंड आउट डिहाइड्रेशन केंदी हवा देखो CH3OH मिथानल दिया गला तुमको आउ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिया है मेकानिज्म जानबा दरकार नहीं केंदी रिएक्शन लिखा हवा पहला मैं कहि दउजे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ने कैटालिस्ट आकार ही काम करसी एक्चुअली तो ई जगह रे हमें 413 केल्विन टेम्परेचर देवा वी विल गिव 413 केल्विन देखो लो टेम्परेचर कंडीशन पळे आसला
सो वन्स लो टेम्परेचर कंडीशन जब पड़े आसला तो इमिडिएटली तुम क्लीयर हो जे इथर बाहरबा आउ इथर जेनटा तैयारी हवा इथर केमती तैयारी हवा देख जेन अल्कोहल आंको दिया हितिबा तुम सेटा 2 मोल ले जिवो यू विल टेक 2 मोल ऑफ दैट अल्कोहल 2 मोल नेला परे केमती करा जेसी देगे CH3OH आउ CH3OH एमती इमेजिन करि पारबो आराम से 2 मोल अच्छे H आउ OH लॉस हो गला HOH जदि लॉस हो गला वाटर है कि ताहले बाहरला काना निजे चेक करो काना बाहरला CH3 ये तो वाटर लॉस हो गला नो CH3O CH3 so this is the ether you got CH3O CH3 what is the name of this ether is called your dimethyl ether काना कहा जिबा देखे डाइमिथाइल इथर कहा जिबा एई जगह रे गोटे पिला क्वेश्चन करि पारे सर ई समान इथर के जदि मैं 443 केल्विन देबी बा हाई टेम्परेचर जदि देबी सेही कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देबी ताले एई जगह रे अल्किन बाहरबा कि एई जगह रे अल्किन पॉसिबल ही नुहे बिकॉज बीटा हाइड्रोजन एई अल्कोहल पाखरे नाही तो एई जगह रे एई कंडीशन रे भी सेही इथर ही बाहरबा द सेम इथर विल ऑब्टेन इतके क्लियर हला समझते ऑल क्लियर ऑन दिस मु आ गुड एग्जांपल करूची एतकी बुझी पारल 2 मोल अल्कोहल नहीं कि एमती तुम रिएक्शन करि पारबो किछि पिला थिबे एने डायरेक्ट दुईटा नहीं कि लिखले भी चलबा ओ नो इश्यू किछि प्रॉब्लम नहीं हुए आउ इने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तुमर कैटालिस्ट आकार काम करबा तो सेति लागि बेटर हबा तुम इताके एरो ऊपर ही लिखि दोतबो कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन एरो ऊपर लिखि देले तुम आउट क्लियर हो गलो जे ये कैटालिस्ट आकार यूज हैला आउ तुम जो मेकानिज्म जानबार लगी चाहेब इफ यू वांट टू नो द मेकानिज्म जेन मैं आई मे एक्सप्लेन मेकानिज्म बट मेकानिज्म मन रखी तो सिलेबस रे नहीं फिर भी मु कहि दउची मोर जनरल अल्कोहल नहीं कि मेकानिज्म कर दउची एटा ROH रहिला कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड निया है जे कैटालिस्ट आकार आउ ए जगह रे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड काम काना हबा से H+ प्रोड्यूस करबा मीडियम रे सो H+ मीडियम रे प्रोड्यूस हे गला फर्स्ट स्टेप रे काना हबा ऑक्सीजन और लोन पेयर H को अटैक करबा दैट इज प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल पहला प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल विल टेक्स प्लेस पहला से अल्कोहल रो प्रोटोनेशन हबा हेला पर काना हबा मुई बार बार कहूचे मेकानिज्म सिलेबस रे नाही OH आगरो H लागितिला आ गुटे ऑक्सीजन संगे हाइड्रोजन लाग गला सो इट्स बिकम नाउ ए गुड लिविंग ग्रुप एबे से जो OH ता थिला सी OH एबे गुटे H2O+ रे कन्वर्ट हो गलानी जगह रे सो दिस ऑक्सीजन नाउ बिकम्स ए गुड लिविंग ग्रुप एबे ये गुटे गुड लिविंग ग्रुप आकार काम करबा नेक्स्ट स्टेप रे काना हबा आ गुटे मोल रो अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक अटैक करिवो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेबो केमती आकारे दिस लोन पेयर विल अटैक टू दिस R से R को अटैक करवा द्वारा दिस बॉन्ड विल नाउ ब्रेक एबे से बॉन्ड टा ब्रेक हे जिवो तो वाटर लॉस हे गला सो वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम हियर वाटर लॉस्ट ला परे बाहरला काना देखो R O दिस ऑक्सीजन इज अटैकिंग टू दिस R तो O R संगे लागु छे तार संगे ए ऑक्सीजन संगे हाइड्रोजन आगरो लागि छे और एटा प्लस चार्ज रहबो बिकॉज दिस ऑक्सीजन हैज डोनेटेड इट्स इलेक्ट्रॉन टू R पाखरे माइनस चार्ज काहे कि रहला नहीं बिकॉज दिस R रो ए बॉन्ड लॉस भी हेची बा ए कार्बन रो ए बॉन्ड लॉस हेची तो सेते में सेना किछि माइनस रहबो नाही बट दिस ऑक्सीजन मस्ट कैरी पॉजिटिव चार्ज ऑन इट बिकॉज दिस ऑक्सीजन इज डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट स्टेप रे काना हबो जेन कैटालिस्ट रो तुमे H+ बाहरी थिला एबे फिर इनु से H+ लॉस हिबा तो कैटालिस्ट रो रोल बुझी पारला से खाली रिएक्शन हेबारे हेल्प कला नहले एट द एंड तार कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहउची सो H+ एठु लॉस होला परे तुम देखि देबो इथर ही बाहरला सो दिस इज द मेकानिज्म आ मेकानिज्म मन रखो सिलेबस रे पचारि नाही फिर भी तुमको मु कह देछि सो दिस पहला प्रोटोनेशन हबा तापरे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू रु वाटर लॉस हे की पळाबा एतकी बुझी पारलो तो गुटे में मिथानल रु सिखे देली इथर काना बाहरला जे डाइमिथाइल इथर बाहरला इथर थ्योरी काना हबा मिथानल अंडरगो डिहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 413 केल्विन गिव्स इथर 413 केल्विन रे सेनु इथर बाहरबा चलो एबे आ गुटे आमे नो लेट्स टेक अनदर अल्कोहल आमे आ गुटे अल्कोहल डिस्कशन करो इफ यू विल कंसीडर अनदर अल्कोहल CH3 CH2OH ए प्रोसेस रे काना बाहरबा चेक करो निजे आमे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड निया हिचे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नेला परे
413 केल्विन टेम्परेचर दिखाई माने देखीदेल कैटालिस्ट अच्छे लो टेम्परेचर दिखाई रिएक्शन तुम कला बेले सब 2 मोल रो अल्कोहल नौथबो यू मस्ट टेक 2 मोल ऑफ अल्कोहल 2 मोल रो अल्कोहल लेबो तार एबे डिहाइड्रेशन हेबा काना बाहरबा प्रोडक्ट इथानॉल दिखाई तो दुईटा इथानॉल रहबा CH3 CH2OH एमती OH CH2 CH3 ये बेसी प्रैक्टिस कला पर एमती रफ के नाइ भी पिला माने डायरेक्टली लिखि देसन तो काना बाहरबा प्रोडक्ट OH आउ H लॉस हो गला OH आउ H वाटर ही लॉस हो गला परे तो वाटर तो बाहरी गला हमर काना बळी गला देखो व्हाट इज लेफ्ट नाउ वाटर इज लॉस्ट वाटर जदि लॉस हो गला नाउ दिस इज द सबस्ट्रैक्ट लेफ्ट काना बळी गला देखो CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 रहला O रहिबा OH फिर CH2 CH3 बहुत इजी है तमें एमती डायरेक्टली 2 लिखि लिखले भी चलबा एमती दुईटा मोल लिखिकी लिखले भी चलबा सो यू गॉट डाइइथाइल ईथर तमें डाइइथाइल ईथर ए जगह रे पाउछ सो यू आर गेटिंग डाइइथाइल ईथर ए समान अल्कोहल के बा सही इथानॉल को जदि 443 केल्विन दिया जाए CH3 CH2OH से कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिया हबो किंतु 443 केल्विन टेम्परेचर कर दिया जीवो आ जे 443 केल्विन टेम्परेचर जदि कर दिया गला ताले सेही कंडीशन रे व्हाट विल हैपन दिस अल्कोहल हैज बीटा हाइड्रोजन या पाखरे बीटा हाइड्रोजन अच्छी सो अल्फा बीटा सो एथिरु गुटे बीटा हाइड्रोजन कौन हम OH संगे मिसिकी वाटर होगी जीव एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट दिस बॉन्ड विल कम हियर एंड दिस बॉन्ड विल गो आउ एटा भी तुम अल्कोहल में पढ़े सारी ऑलरेडी सो यू विल गेट अल्किन CH2 बिकज बीटा हाइड्रोजन लॉस होची CH2 डबल बॉन्ड CH2 OH जाइछि तो HOH वाटर लॉस हो गला आउ ता संगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 तैयारी हो गला डिड यू रियलाइज द डिफरेंस सो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंस रे हाई टेम्परेचर रे अल्किन बाहर और लो टेम्परेचर रे इथर बाहर एतकी बुझी पार्ल समस्ते ऑल क्लियर ऑन दिस ऑल क्लियर ऑन दिस ऑल क्लियर ऑन दिस एतकी समस्ते क्लियर हो जाइथिबो मोर हिसाब रे आ मु मेकानिज्म भी ऑलरेडी कहि देछि आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द मेकानिज्म आ मन रख ये जो इथर फॉर्मेशन हेबा पई जो डिहाइड्रेशन प्रोसेस होउची और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथर को प्रकार अल्कोहल सुइटेबल रहिबो बेसिकली जदि प्राइमरी अल्कोहल अच्छी और यू कैन द सुइटेबल फॉर इथर फॉर्मेशन हेबा पाई बेसी सुइटेबल जी रहे सीटा होची प्राइमरी अल्कोहल प्रथमे बेसी सुइटेबल रहिबो आउ तापर सेकेंडरी अल्कोहल आसीबो आउ लास्ट रे टर्शियरी अल्कोहल आसीबो माने एक्चुअली जदि टर्शियरी अल्कोहल तुम यूज करूछ से केस रे टेम्परेचर लो हेले भी इथर हेबार चांसेस बहुत कमी जाइसी और टर्शियरी अल्कोहल जदि निया गला से केस रे अल्किन हेबार चांसेस बढ़ी जाइसी बिकज नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन बढ़ी जीवा मैं काना कहवाले चाहूचे देखो इटा गोटे प्राइमरी अल्कोहल मिथानॉल गोटे भी प्राइमरी अल्कोहल नहीं किंतु मुझे जदि गोटे टर्शियरी अल्कोहल लेबी से केस रे टेम्परेचर कम हेले भी CH3 CCH3 CH3OH this is a tertiary alcohol so in this tertiary alcohol there are so many beta hydrogen are there beta hydrogen so a tertiary alcohol जदि दिया गला आउ concentrated sulfuric acid जदि दिया हेची आउ low temperature जदि दिया हेची ताहेले भी एई जगह रे इथर फॉर्म हेबो नाही लो टेम्परेचर देले भी इथर फॉर्म हेबो नाही बिकज ए केस रे जदि इथर फॉर्मेशन हेइथांता सो द इथर विल बी लाइक दिस ए केस रे जदि इथर तयारी हेइथांता तले इथरटा ए भलिया हेइथांता बट दिस इथर इज वेरी वेरी अनस्टेबल बिकज ए ऑक्सीजन साइड रे एटा गोटे बल्कियर ग्रुप आउ एटा गोटे बल्कियर ग्रुप अछि ए दुईटा बल्कियर ग्रुप भितरे सफिशिएंट रिपल्सन हो जिवो तो सेतिफाई इथर फॉर्मेशनटा नेग्लेक्ट करा जाई पारे यू कैन से 1% कि 2% इथर तैयारी हेले ही पारे बा इथर नहीं ही तैयारी हुए बिकज इने जदि ए लो टेम्परेचर दिया हिची ए जो इथर बाहरिबो दिस इथर सब हैज ए सफिशिएंट स्टेरिक रिपल्सन तो जदि टर्शियरी अल्कोहल निया हिची से लो टेम्परेचर देले भी सेही केस रे इथर न बाहरी की से बीटा हाइड्रोजन और OH लॉस है कि अल्किन ही बाहरिबो एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट
गोटे बीटा हाइड्रोजन सपोज ए बीटा हाइड्रोजन लॉस है सपोज CH2H मु कर दूची दिस बीटा हाइड्रोजन लॉस HOH पड़ेबो वाटर लॉस हम एंड यू विल गेट एन अल्किन तुम यही केस रे अल्किन पाइजिब CH3 डबल बॉन्ड CH2 सो यू विल गेट अल्किन मन रखी तो से कहली सुइटेबल फॉर इथर को प्रकार अल्कोहल देले बेसी सुइटेबल रहिबो माने लो टेम्परेचर रे इथर बाहर हाई टेम्परेचर रे अल्किन बाहर सेटा होची प्राइमरी अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल देले तुम्हें लो अल्कोहल माने लो टेम्परेचर देले भी सही केस रे अल्किन ही बाहर तो क्वेश्चन जदि पचारे अल्किन फॉर्मेशन पाई को प्रकार अल्कोहल बेसी सुइटेबल दैट विल बी द टर्शियरी किंतु इथर फॉर्मेशन पाई को प्रकार अल्कोहल बेसी सुइटेबल दैट इज प्राइमरी एतकी बुझी पालो दिस वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट तुम्हें पचार सर व्हाट विल बी द सेकेंडरी अल्कोहल रे इथर चांसेस भी बढ़ी जाए आ से लो टेम्परेचर कंडीशन रे इथर भी बाहर ता सांगे किसी अल्किन भी तैयारी होता है तो से पिला गोटे कन्फ्यूजन रहे माने जदि तुम गोटे सेकेंडरी अल्कोहल जदि दिखाई इफ यू आर गिवेन सेकेंडरी अल्कोहल ताले सेकेंडरी अल्कोहल केस रे लो टेम्परेचर रे कौन हम इथर भी बाहर आउ किसी अल्किन भी बाहर माने एग्जांपल देख CH3 CHOH CH2 और CH3 मुझे ये गोटे सेकेंडरी अल्कोहल देला सो इन दिस सेकेंडरी अल्कोहल आउर भी दी किसी असुविधा नहीं CH2 CH3 ये भाया सेकेंडरी अल्कोहल देछि आ सेकेंडरी अल्कोहल रे आमे जदि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करिबा आउ जदि 413 केल्विन दबा माने लो टेम्परेचर दिया गला सो ए कंडीशन रे एठू इथर तो बाहर ता सांगे किसी अल्किन भी बाहर जीवो बिकज इथर फॉर्मेशन पाई बेसी सुइटेबल नुहे सबुठू बेसी सुइटेबल किए प्राइमरी अल्कोहल तो ये जगह अल्किन बाहर कौन बाहर माने ए रिएक्शन रे मिक्सचर प्रोडक्ट बाहर प्रथम तो इथर बाहर इथर को प्रकार रही CH3 CHO HOH लॉस हो माने एटा तुम दुईटा मोल लिखिदे सुविधा इट इज बेटर टू राइट 2 मोल एमती आम 2 मोल नौचु एटा कि प्रकार अल्कोहल CH3 CH CH2 CH3 OH सेमती आ गोटे अल्कोहल लिखिदेव CH OH CH3 CH2 CH3 एठू इथर कौन केमती बाहर HOH लॉस हो गला नाउ यू गॉट द इथर सो इथर कौन बाहर इथर विल बी CH3 CH CH2 CH3 bond O CH CH3 CH2 CH3 सो लो टेम्परेचर इथर बाहर इथर सांगरे इथरे मिक्सचर प्रोडक्ट कौन बाहर अल्किन भी बाहर अल्किन केमती बाहर बीटा हाइड्रोजन लॉस होगी सो दिस बीटा हाइड्रोजन विल बी लॉस्ट ए बीटा कहीं नुहे बिकज ये शेडजेव रूल एप्लाई हम नहीं हो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन बाहर तो से दिस बीटा हाइड्रोजन विल बी लॉस्ट आउ यही जगह डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो बीटा हाइड्रोजन जो लॉस हम बीटा हाइड्रोजन लॉस होगा डबल बॉन्ड ये तैयारी हम OH पलैब सो सेकेंडरी अल्कोहल नेले इथर आउ अल्किन रो मिक्सचर बाहर प्राइमरी अल्कोहल नेले लो टेम्परेचर रे केवल इथर बाहर किंतु हाई टेम्परेचर रे अल्किन भी बाहर आ टर्शियरी अल्कोहल जब निया लो टेम्परेचर रे केवल अल्किन ही बाहर इथर बाहर ना से मुझे कहली सुइटेबल फॉर इथर फॉर्मेशन कौटा बेसी सुइटेबल प्राइमरी अल्कोहल तापर सेकेंडरी तापर टर्शियरी आई होप मु बहुत किसी अल्कोहल विषय कहीदेची एतकी डिटेल क्वेश्चन पचारू ना बट स्टिल तुम्हें जानी था कौ प्रकार अल्कोहल नेले एक्सक्लूसिवली जब इथर बाहर कह लो टेम्परेचर रे देन दैट इज प्राइमरी अल्कोहल कारण सेकेंडरी अल्कोहल नेले अल्किन किसी मिक्सचर बाहर जाऊँगी और टर्शियरी अल्कोहल नेले तो इथर ही बाहर ना बिकज दैट इज मोस्ट सुइटेबल फॉर द अल्किन फॉर्मेशन बुझीगला ये सो दिस इज हाउ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल इज कंप्लीटेड नाउ वी विल डिस्कस दैट इज आ मन रख ये माने अनसिमेट्रिकल माने ये इथर फॉर्मेशन पाई ये अल्कोहल रू यूज न करी विलियमसन सिंथेसिस बेटर मेथड प्रिपरेशन बाय यूज और फ्रॉम थ्रू विलियमसन सिंथेसिस ये आम ए डिस्कसन करवा विलियमसन सिंथेसिस वेरी इजी कारण विलियमसन सिंथेसिस आमे आगुरु ऑलरेडी पढ़ी सारी
we have already discussed about the Williamson synthesis. केमती आकारे Williamson synthesis रे कौन हुए सोडियम अल्कोक्साइड को अल्किल हैलाइड सहित रिएक्शन करा जाए. So sodium alkoxide reacts with alkyl halide to give ether. ether आउ ए जगह मीडियम आकार किसी मीडियम न लिखले भी चलिबो डायरेक्ट तमें डायरेक्ट लिखले भी चलिबो. सो सोडियम अल्कोक्साइड रिएक्ट्स विथ अल्किल हैलाइड टू गिव ether. केमती आकार हेबो देखो वेरी सिंपल. O माइनस आउ Na+, this O माइनस will attack to this R and this X will go as a living group. तो Na+ आउ X माइनस Na+ आउ X माइनस NaX है कि लॉस है जीवो and you will have the ether कौन बारिबो R O, this O is attacking to this R, so this is the ether you got and this is called your Williamson synthesis. Sodium alkoxide reacts with alkyl halide to give ether. Simple गोटे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुए. दिस इज सिंपली ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एग्जांपल करा जाऊ CH3 CH2 ONA reacts with suppose CH3 Br. So what will be the product here? Very simple concept, minus plus. So this will act as a nucleophile. It will attack to which one? To the carbon that is directly attached to halogen. मन रखो because this carbon has the positive charge on it. So जो कार्बन हेलोजन लगी थी सही कार्बन को ए O माइनस अटैक करिवो. अटैक कला परे Br माइनस पळेला Na+ अछि एठी. Na+ and Br माइनस it's become NaBr. And what is the ether you got? Got the ether CH3 CH2 O CH3. So you got ethyl methyl ether. You got here ethyl methyl ether. आउटे करा जाऊ CH3 ONA. तो यार ना कौन यार ना हवा सोडियम इथोक्साइड. इट्स नेम इज सोडियम इथोक्साइड. थ्योरी ताले कौन हबो सोडियम इथोक्साइड रिएक्ट्स विथ मिथाइल ब्रोमाइड. सोडियम इथोक्साइड reacts with methyl bromide to give sodium ethoxide reacts with methyl bromide to give ethyl methyl ether to give ethyl methyl ether. इतकी बुझी पारला समझते to give ethyl methyl ether. All clear on this? All clear on this? इतकी समझते बुझी पारथिबो. आ गोटे क्वेश्चन करा जाऊ सोडियम मिथोक्साइड सांगरे CH3 CH Br CH3 मु देली. So what will be the product? Product कौन हम को जगह रे this is CH3O minus Na+. So this will attack to which carbon? There are 3 carbon are there, but which carbon has more delta positive on it? This carbon, because this carbon is directly attached to the halogen. So এই জায়গায় delta positive বেশি রহিব. So this O minus will attack to this carbon and this Br will go. बुझी पारल एटा होची बहुत फंडामेंटल कांसेप्ट जी O माइनस बा न्यूक्लियोफाइल को कार्बन को अटैक करिवो जो कार्बन रे तमरो हैलोजन डायरेक्टली अटैच हिथिबो और टू द कार्बन वेयर हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड सी कार्बन को हे से अटैक करिवो. ताले बाहरला कोन प्रोडक्ट ताले मो को हो जगह रे CH3O माइनस ए कार्बन जे लागि जिवो आ NaBr लॉस हि जिवो. सो NaBr इज लॉस्ट. NaBr इज लॉस्ट एंड नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड CH3 एमती लिखा जाऊ CH3 CH ए कार्बन के लागुच आसिकी OCH3 लागुची. सो CH OCH3 एंड दिस कार्बन इज अटैच्ड टू CH3 बिफोर आगुर CH3 लागि थिला. सो दिस इज द ईथर दैट यू विल गॉट. यार ना काना हबो मिथाइल यार आइसोप्रोपाइल. सो इट्स नेम विल बी आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर. Isopropyl methyl ether or you can say 2-methoxypropane. 2-methoxypropane. तो 2-methoxypropane ही गला. तो sodium methoxide reacts with isopropyl bromide. Sodium methoxide reacts with isopropyl bromide to give 2-methoxypropane. बुझी पारला समझते कि all clear on this? All clear on this? आमे याकू नहीं करी आउ किछि क्वेश्चंस डिस्कशन करिबा बा किछि प्रॉब्लम डिस्कशन करिबा. लेट्स डिस्कस सम प्रॉब्लम ऑन दिस कांसेप्ट. ये कांसेप्ट रे
आमे किछि प्रॉब्लम एबे डिस्कशन करिबा ओके सो मो बुक रो ही प्रॉब्लम गुडा को डिस्कशन करोछि CH3 CCS3 CS3 OH Na ये कहीदेवी रिएक्शन विथ मेटाल लेकिन अल्कोहल सिलेबस रे दे नथिला बट स्टिल यू शुड नो ए जगह पुणी मुझे देथि CH3Br सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट यू हैव टू फाइंड आउट तो रिएक्शन केमती करा जीवो देखिदेव मेटाल सांगे जदि अल्कोहल रिएक्शन देसी देन डेफिनेटली ए जगह ये मेटाल लगी जीवो और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो सो O माइनस एंड Na प्लस विल बी देयर एंड दिस हाइड्रोजन विल लॉस एज ए हाइड्रोजन गैस ये जगार हाइड्रोजन गैस हाफ H2 लॉस हो माने गोटे हाइड्रोजन पड़ोची माने ताको हाफ H2 लिखी दउची तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गला परे ए जगार सोडियम अल्कोक्साइड प्रथमे फॉर्म हो तो अल्कोहल रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल टू गिव सोडियम अल्कोक्साइड मन रखिता तो प्रथम स्टेप रे कोन बाहरिबो A और B जदि मु देली ताले A डा कोन होबो जगार A विल बी हियर CS3 CCS3 CS3 O माइनस Na प्लस सो यहाँ बाहरी गला A तो ये स्टेप तो बुझी पाला तो ये रिएक्शन केमती देला जगह जी तो गोटे स्टेप से बैक रू देछि माने अल्कोहल को प्रथमे सोडियम अल्कोक्साइड करिवो तापर सोडियम अल्कोक्साइड सहित मिथाइल ब्रोमाइड दिया गला माइनस प्लस एंड नाउ इट इज गिविंग मिथाइल ब्रोमाइड एबे तो रिएक्शन इजीली करी हबो केमती आकारे O माइनस विल अटैक टू CH3 दिस Br विल गो सो व्हाट इज द प्रोडक्ट यू विल गेट CH3 C CH3 CH3 O कहाँ सहित लगे CH3 सहित प्लस NaBr सो यू विल गॉट दिस काइंड ऑफ इथर बुझी पारला समस्ते एतकी आई होप यू ऑल आर क्लियर ऑन दिस ऑल क्लियर ऑन दिस ऑल क्लियर ऑन दिस सेमती आउ भी दे पारिबो आमे प्रॉब्लम गुडा को दउछि ता व्हाट आर द प्रॉब्लम्स पॉसिबल विथ दिस विलियमसन सिंथेसिस फिनॉल देछि एसिड बेस देछि NaOH A A सहित CH3Br रिएक्शन कराओ से A सहित CH3CH2Br रिएक्शन कराओ सो कौन बाहर प्रोडक्ट सो फर्स्ट स्टूडेंट हैज टू क्लियर व्हाट इज दिस A कौन हम कि जान ये है एसिड फिनॉल इज एन एसिड एंड दिस इज ए बेस तो एसिड और बेस रिएक्शन है कि सॉल्ट बाहर वाटर लॉस है कि सो हियर व्हाट इज A इज हियर sodium phenoxide so sodium phenoxide you got now that sodium phenoxide now reacts with CH3Br CH3Br सहित रिएक्शन करिवो very easy O minus will attack to CH3 this Br will go so NaBr is the byproduct NaBr byproduct बाहरी गला इथर कौन बाहरला जगह रे benzene O and this O is attached to CH3 so you got methyl phenyl ether या को कौन कहबो मिथाइल फिनाइल इथर कहा जाए मिथाइल फिनाइल इथर आ यार गोटे कॉमन नेम अच्छी दिस इज कॉल्ड आल्सो एनिसॉल दिस इज कॉल्ड एनिसॉल मिथाइल फिनाइल इथर को एनिसॉल भी कहा जाए मिथाइल फिनाइल इथर इज आल्सो कॉल्ड एनिसॉल क्लियर है समझते मिथाइल फिनाइल इथर को एनिसॉल भी कहा जाए ना व्हाट अबाउट दिस पाथ इटा सी कहीदेली डी कहीदेली सो आई गॉट सी तो पाईगली ताले डी कौन हम व्हाट विल बी द डी मुझे डायरेक्टली लिखी दूसरी निजे रिएक्शन लिखिकी लिखब डी विल बी योर O ये जगह O माइनस क्या अटैक कर CH2 विल अटैक दिस विल अटैक टू CH3 CH2 एंड Br विल गो ये O माइनस CH2 को अटैक कर सो प्रोडक्ट कौन बाहर O CH2 CH3 सो दिस इज योर D इथाइल फिनाइल इथर इथाइल फिनाइल इथर इज योर D बुझी पारला समझते ऑल क्लियर ऑन दिस ऑल क्लियर ऑन दिस ऑल क्लियर ऑन दिस एतकी समस्ते बुझी पारलो एतकी समस्ते बुझी पारलो केमती आकर आमे बाहर करूछु इथर रोजे नाउ लेट्स गो टू अनदर कांसेप्ट आ गुटे आमे डिस्कशन करबा सपोज यू आर गिवन लाइक दिस से सोडियम फिनॉक्साइड दिया ही आ तुमको क्वेश्चन पचरा गला ब्रोमोबेंजीन सांगे रिएक्शन पचरा जाइए
what will be the product here? 95% student will give the answer. How they will give? O minus will attack to this carbon and this Br will go, and the product you will obtain NaBr, and you will give your answer like this: benzene O, this O is attached to now this carbon, means to the benzene, means diphenyl ether. ये आंसर टा 95% स्टूडेंट देबे आ ऑप्शन रे भी थिबो, बट दिस इज नॉट करेक्ट. नो रिएक्शन, एक्चुअली कौन सी रिएक्शन हुए नहीं यार. व्हाई नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस? काहे की रिएक्शन हुए नहीं? बिकॉज दिस CBr बॉन्ड इज नॉट ए सिंगल बॉन्ड. CBr बॉन्ड गोटे सिंगल बॉन्ड नुहे. एक्चुअली दैट बॉन्ड हैज ए डबल बॉन्ड कैरेक्टर. केमती आकारे से ब्रोमोबेंजीन रे से बॉन्ड रे डबल बॉन्ड कैरेक्टर अच्छी. सो दैट बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक. एंत रिजोनेंस करदेले क्लीयरली जना पड़ जाउची जे दिस बॉन्ड हैज सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑन इट. तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये बॉन्ड रे थिबारु ये आउ न्यूक्लियोफाइल एठको अटैक करिकी इजीली आउ बॉन्ड लॉस हे पारिबो नाही. बुझी पारलो? This is very important concept. So you will say there will no reaction will takes place because in this case the carbon and bromine has a double bond character on it. ए कार्बन और ब्रोमीन भितरे डबल बॉन्ड कैरेक्टर अच्छी. तो ये जगह ब्रोमीन गोटे गुड लिविंग ग्रुप आकार जाई परिबो नहीं. दैट्स व्हाई दिस देयर विल बी नो रिएक्शन हियर. हाँ जदि एमती अच्छी, इफ यू हैव लाइक दिस O minus Na plus, and if you have benzyl bromide is there, benzyl bromide यदि अच्छी, then in this case reaction may takes place because there is no resonance is here. So this is a simple single bond is there. So O minus will attack to this carbon and this bromine will go. So what you will got here then? ये जगह तुम्हें कौन पाइबो? You will get here like this. O attack कला कहा को CH2 ता संगे bromine लगी ची. So you will get like this benzyl phenyl ether तुम्हें पाइबो. This is correct. benzyl phenyl ether है जीवो किंतु diphenyl ether एंते ही पारिबो नहीं. I hope you all are clear on this. And why this is not possible? Is it clear? Because there is a double bond character between this C and Br. इतनी clear है समझते? All clear on this? All clear on this? Suppose मैं आगे क्वेश्चन दूची. Let's discuss another question on this. या ऊपर आम आउ गोटे क्वेश्चन डिस्कसन करूँ. सपोज मत कहगला ब्रोमोबेंजीन सहित CH3ONA रिएक्शन करने. व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? कॉन्सेप्ट कौन? सोडियम अल्कोक्साइड तो देइछि माने O माइनस अटैक करिवो ए पोजीशन को, Br पड़िबो, NaBr बाहरी जीवो. डज इट हैपेंस? नो, इट विल नॉट हैपेन. हेबो नाही. काहे कि हेबो नाही? बिकॉज ये जो ब्रोमीन लगिला डायरेक्टली बेंजीन सहित रिजोनेंस यदि ड्र करा जाए ताहले एठी C और Br भितरे डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहिबो. तो सेति पई एटा हे पारिबो नाही. दिस विल नॉट पॉसिबल बिकॉज ये जगह C और Br भितरे डबल बॉन्ड कैरेक्टर अच्छी. सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. एटकी बुझी पालो? तो एराइल हैलाइड रे तुमर ये जगह आउ सोडियम अल्कोक्साइड नेले भी कौन प्रकार नेले भी विलियमसन सिंथेसिस आउ हेबो नाही. बट इफ इट इज गिवन लाइक दिस, एमती देइछि O माइनस Na प्लस जदि देइछि ताहले CH3Br जदि देइछि, देन दिस रिएक्शन इज इजीली पॉसिबल बिकॉज एयर C और Br भीतर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर अच्छी. ए जगह NaBr जाई कि एनिसॉल बाहरी पारिबो. डिफरेंस बुझी पारलो? तो एनिसॉल तैयारी करबा पई हले को प्रकार सबस्ट्रेट सुइटेबल. Is it clear to all? This reaction is possible. एमती भी एग्जाम रे क्वेश्चन पचारि पारे जे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनिसॉल व्हिच वन इज सुइटेबल, ऑप्शन ए आउ ऑप्शन बी. ऑप्शन ए भी जे देखबो एमती गोटे पिला चाहेले एटा को एनिसॉल लिखि पारबा. बट इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? दिस इज नॉट पॉसिबल because C and Br has double bond character. But this reaction is possible. So option B is the right answer for the preparation of anisole. मते लागुची I have talked enough on this Williamson synthesis. यार विषय जितकी जितकी सब दरकार थिला बा जहाँ आवश्यक अच्छी मु सब डिस्कसन कर सारी. बिकज कौ जगह विलियमसन सिंथेसिस हेबो नाही सेटा भी मु कहि देछि. इतकी नोट्स एनफ है प्रिपरेशन ऑफ इथर रे. ओके बाकी सब मेथड जोटा बुक रे अच्छी सिलेबस रे आउ नाही. So I hope you all are clear
on the preparation of ether. So we will stop here.